Previous lecture, we have seen the formula of compounds on the basis of how many of the tetrahedral or what fraction of the octahedral void is filled. We have seen the examples as well. Now we have to do a bit discussion about the location, how to locate tetrahedral and octahedral voids, right? So locating tetrahedral void and locating octahedral void is going to be our next exercise. Students, we already know well about the tetrahedral voids and octahedral voids. So now it is quite easy for all of us to do it. See, this is the way, just this is a theory portion. Go through its a simple reading of it, and you will be able to locate the tetrahedral and octahedral void. In a tetrahedral void, just keep this thing in your brain. You will have to draw a cube, okay, and alternate positions will be occupied by the particles. Suppose here is the particle, तो इसके next edge पर कोई भी next vertices पर कोई भी पार्टिकल नहीं होगा, राइट? मतलब एक कॉर्नर छोड़ करके दूसरे कॉर्नर पे आपको पार्टिकल रखना है, alternating corners, and then connect them with single straight lines, and you will be able to draw the tetrahedral void. This was about the tetrahedral void. What about the octahedral? For octahedral void, see, this is the arrangement, okay? So आपको फ्रंट और बैक फोर क्यूब्स का एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा. सिंपली 8 क्यूब्स, 4 इन फ्रंट, 4 ऑन द बैक साइड. तो बैक साइड के पॉइंट पर और फ्रंट साइड के पॉइंट पर और इधर के और इधर के, मतलब चारों आपको कॉर्नर्स मैच कर लेने हैं, एंड ओके. और फिर आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए. यू विल बी एबल टू ड्रॉ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. इसका थोड़ा सा एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा. नहीं कर पाएंगे तो आई टेल यू, मतलब इट्स क्वाइट इजी, मैं करके दिखा देता हूं. सी, although to draw octahedral or to locate tetrahedral void is not the question which can be asked in your examination, but for the sake of completion you must know how to do it. टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए आपने ऐसा क्यूब बना लिया और अल्टरनेट पोजीशंस पे पार्टिकल्स फिक्स कर दिया. Then connect them with a straight line.
ओके। ये तो मैंने बॉन्ड्स दिखाए किस तरीके से होंगे। अगर आपको वॉइड देखना है सो दिस इज द वे। दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। रेड लाइंस से जो बना हुआ है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना। दीज ब्लैक लाइंस यू नीड नॉट टू ड्रॉ। ओके, जो मैंने टेट्राहेड्रॉन दिखाने के लिए बनाई है। फॉर ऑक्टाहेड्रल आपको 8 क्यूब्स बनाने हैं। अब आप लोगों को 8 क्यूब्स क्लियर दिख रहे होंगे, राइट? उन सारे 8 क्यूब्स के सेंटर्स ले लेने हैं आपको, मतलब 8 क्यूब का कॉम्बिनेशन बनने के बाद जो सेंटर आएगा।
उसके ये 6 ऑपोजिट कॉर्नर्स, और इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए लाइन का कलर चेंज कर देता हूं, लेट इट बी ग्रीन। ओके, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, आई होप अब आसानी से आप लोग इसे ड्रॉ कर पाएंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। आई एम गोइंग टू इरेज इट। So this was about the location of tetrahedral and octahedral voids. About their numbers, I have already told you. One point which can be noticed here, in case of octahedral void, only 1/4 of each void belongs to the particular unit cell. Okay. By the way, now let's come to next more important calculative part of this chapter, that is packing efficiency or packing fraction. See, what is packing efficiency? The ratio of the volume occupied by the particles in a unit cell to the total volume of the unit cell is known as packing efficiency. आप किसी भी तरीके से पार्टिकल्स को रखिए, कुछ खाली जगह छूट जाएगा यूनिट सेल के अंदर, राइट? देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस फॉर द वॉइड्स. पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स. एक्चुअली बेटा दो टर्म्स हैं, पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स टू द टोटल वॉल्यूम, एंड पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज. तो मतलब जो फ्रैक्शन आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द परसेंटेज. ओके, वॉल्यूम ऑक्युपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम. इसको वॉल्यूम ऑक्टाहेड्रल और वॉल्यूम टेट्राहेड्रल प्लीज नहीं पढ़ेंगे. ओके, excuse me students, let's resume with the lecture. Packing efficiency we were discussing. First of all, let's calculate the packing efficiency of simple cubic. थोड़ा सा NCERT से उल्टा चलते हैं. Okay, I practically feel that अगर हम पहले सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ें, फिर BCC का पढ़ें, उसके बाद FCC या SCCP का पढ़ें, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है. सो लेट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्टडी. ओके, और थोड़ा सा अपने तरीके से करते हैं. सो आप लोग 2 पेज आगे आएंगे और आपको मिलेगा पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक. पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे. ओके, packing efficiency of body centered, packing efficiency of simple cubic lattice, right? See, simple cubic lattice में मैं आपको बता चुका हूं पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, ओनली एट कॉर्नर्स. ओके, एज लेंथ जो है वो a है और रेडियस ईच पार्टिकल का r है. तो उस कंडीशन में
अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये दोनों का सम, स्पेस फील्ड मॉडल की तरीके इसको अज्यूम करिए. सो half of the edge length will be equal to the radius of the particle, right? Means edge length A is equal to 2r twice into the radius of the particle. Okay, look, A is equal to 2r. वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल क्यूबिक है तो a क्यूब फॉर्मूला लग जाएगा. रेडियस आप 2r पुट करेंगे, इट विल बी 8r क्यूब. सिंस अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स ओनली वन एटम, आपको पता है टोटल तो उसमें वन एटम ही है. सो वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, सिंपल क्यूबिक का पार्टिकल मैं कैलकुलेट करा चुका हूँ ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू विल गेट वन ओनली. ईच कॉर्नर 1/8, टोटल 8 कॉर्नर्स, तो 1/8 into 8 is equal to 1. Okay, volume of the occupied space 4/3 pi r cube as the volume of the sphere. On calculating it, you will get packing efficiency is equal to volume of the atom upon volume of the cubic unit cell into 100. 4/3 pi r cube volume of the atom upon volume of the unit cell 8 r cube into 100. On solving, you will get pi by 6 into 100, that is 52.4%. 52.4%. This is the, see, you know how to calculate it. Still, I want you to learn this number. This will help you. Okay, so learn this number. For simple cubic, packing efficiency 52.4. Now let's see BCC for body centered cubic. What is the case in body centered? Particles are present at corner and one particle is present at center as well. अच्छा, सेंटर में पार्टिकल रखने के लिए कॉर्नर के पार्टिकल्स आपको छोटे करने पड़ेंगे. मतलब इन दिस केस यू कैन नॉट राइट दैट रेडियस ऑफ द पार्टिकल का ट्वाइस इज इक्वल टू एज लेंथ. नो. देन हाउ? अगर आप डायगोनल पे नजर डालें तो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि आर, see this r and 2r complete diameter of the center particle and r of this one. Okay, इस तरीके से आपका ये जो डायगोनल है वो 4r के इक्वल आएगा. बट डायगोनल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इन ट्रायंगल ई एफ डी, ई एफ डी, ओके, आप डायगोनल बी के इक्वल ही तो होगा. अब बी का वैल्यू निकाल दीजिए, फिर सी का वैल्यू आ जाएगा ट्रायंगल एफ डी एंड ए से, राइट, दिस वन ट्रायंगल एफ ए डी से. एक्चुअली मुझे सी का वैल्यू चाहिए तो सी का वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे. For calculating the value of C, we must have the value of B. तो उसके लिए हम E F D को assume कर रहे हैं, ट्रायंगल E F D. So first of all, let's have ट्रायंगल E F D. यहाँ पर दो ब्रांचेस हमारी A हैं, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. यूज पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू बेस स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर. B इज इक्वल टू अंडर रूट 2a. B का वैल्यू आ गया. Now in the triangle FDA या AFD, C square यानी hypotenuse square is equal to perpendicular square into base square. So A square plus B square. B square की जगह पर आप root 2a रखेंगे, B की जगह पर you will get 2a square, overall 3a square. So C is equal to under root 3a. क्लियर हो रही बात? You are getting the value of C also. Now C is, as you can see, the length of the body diagonal
C इज इक्वल टू 4R, मैंने बताया कैसे, R प्लस 2R प्लस R, सो टोटल 4R. 3A is equal to 4R. From here A is equal to 4R by 3. We can write R is equal to root 3 by 4A. Both are the same things. Now what we are going to do, in this type of structure total number of particle 2 होता है, BCC में 2 particle होते हैं total, 1 by 8 into 8 at corners, that is 1 particle at corners and 1 particle तो center पर रखा हुआ है. So total particle 2, so total volume occupied by the particle is equal to 2 into 4 by 3 pi r cube. Volume of the unit cell A cube होगा. Okay, A का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, A is equal to 4R by 3. Putting these values, A cube is equal to 4R by root 3 का cube. Okay, packing efficiency, volume occupied by the two spheres upon total volume into 100, 2 into 4 by 3 pi r cube into 100 upon 4 by root 3 R with the power 3. On solving, you will get 68%, right? Again, I am telling you, you need not to learn, you know how to calculate, still you must know the value of packing efficiency for BCC. तो इसको learn करने में कोई बहुत typical काम नहीं है. 52.4 in case of SC simple cubic, BCC के लिए 68%. Now let's see the example of what? FCC, that is CCP या HCP बोल सकते हैं उसे. यहां पर हमें रूट बॉडी डायगोनल नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा. HCP में कंडीशन क्या थी, अज्यूम करें पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है और हर बॉडी के फेस पे प्रेजेंट है. तो आप किसी फेस पर एक डायगोनल बना लीजिए, आप अपने रूम में अपने सामने वाली दीवार पे एक डायगोनल बना लीजिए. ओके, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ईच कॉर्नर 1 पार्टिकल और एक पार्टिकल बीच में. ईच कॉर्नर पे 1 पार्टिकल और 1 कंप्लीट पार्टिकल बीच में. इसका 2R, R प्लस R, और दोनों पार्टिकल्स का सिर्फ रेडियस. ओके, इसका पूरा डायमीटर आ जाएगा बीच वाले पार्टिकल का और बाकी का रेडियस. फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट, आप बॉडी डायगोनल निकालिए. साइड एज लेंथ मैं A मान लेता हूं. अगर हम एज लेंथ A कैलकुलेट करें तो बॉडी डायगोनल AC का वैल्यू इन ट्रायंगल ACD या ABC कोई भी आप अज्यूम कर लीजिए. सिंपली यू विल गेट B इज इक्वल टू रूट 2A. ओके, ये बॉडी डायगोनल नहीं है, मतलब अंदर का बॉडी डायगोनल ये होता है, राइट. दिस इज बॉडी डायगोनल जो हमको निकालना पड़ा था BCC में, यहां पर उसकी जरूरत नहीं है. सो सिंपल फेस पे जो डायगोनल आ रहा है रूट 2A वो 4R के इक्वल हो जाएगा. फ्रॉम हेयर A इज इक्वल टू 4R बाई रूट 2 और 2 रूट 2R. अच्छा, R का वैल्यू आपको पता चल गया, A का वैल्यू आपको पता चल गया. स्टूडेंट्स, ये बीच का फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज मेनी टाइम्स देयर आर न्यूमेरिकल्स जिनमें आपको A दे दिया जाता है और R का वैल्यू पूछ लेते हैं, या फिर R दे दिया जाता है और A का वैल्यू पूछ लेते हैं. ओके, सो दिस शुड बी इन योर माइंड. नहीं होगा तो आप डिराइव कर लेंगे, इतना एबिलिटी आपके अंदर है, बट आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर. सो यू हैव टू लर्न इट. पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर टोटल 4 पार्टिकल था तो 4 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब कर देंगे. 4 पार्टिकल कैसे, 1 बाई 8 एट कॉर्नर्स, एट 8 कॉर्नर्स तो 8 पार्टिकल हो गया. 1 बाई 8 इंटू 8 प्लस हर फेस पर हाफ है और टोटल 6 फेसेस हैं. सो 3 प्लस 1 दैट इज 4. 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है. 4 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब करेंगे. पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम of the unit cell 4 spheres upon total volume into 100. On putting the values and solving, you will get 74%.
right? This was all about the packing efficiency. Okay, students, in the next lecture, we will see about the imperfections in solids. Calculations involving unit cell, हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं पहले इसे. There is just one formula. उसके बेसिस पे आप आसानी से यूनिट सेल के कैलकुलेशंस कर सकते हैं. What is that? D is equal to Zm upon A cube Na. What is D here? Density. Z, number of particles in a unit cell. For SC, the value of Z is 1. For BCC, the value of Z is 2. And for FCC, the value of Z is 4. What is M here? Molecular mass. What is A? Edge length का cube into Na, Avogadro's number, you all know very well. इन 5 पैरामीटर्स में बेटा इन जनरल आपको कोई 4 दिए होते हैं और 5th आपको कैलकुलेट करना होता है. ओके, सो काफी सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बट स्टिल few at least you will have to do 5 to 10 numericals on the basis of this. फिर आप इसको आसानी से कर पाओगे, क्योंकि यूनिट में काफी खिलवाड़ होता रहता है. ठीक है, सो to get rid of that problem, practice a bit. Example 1.3 आप लोग कर लेंगे. One point four as well, 1.5. These questions, don't leave anything, right? Now, imperfection of in solids. This is the last topic which we have to discuss from this chapter. As per the new revised CBSE syllabus, आपका electric and magnetic properties are already deleted from the syllabus, so we need not to discuss that, at least for the examination point of view of class 12th. For competition exams point of view, we will discuss it, but later. Okay, this time our focus is towards board examination. So till then, thank you class. Keep learning, keep watching. In the next lecture, we will discuss about the imperfection in solids. Thank you.